السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی طرح آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاخ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ہلٹ پالیسی پر BRS کی جانب سے کی گئی تنقید پر TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے رد عمل ظاہر کیا۔ حیدرآباد کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنے کے لیے ریونت ریڈی نے اس پالیسی کو متعارف کیا ہے۔ TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ کا اظہار۔ نوجوان کو فرضی ملازمت کے نام سے بیرون ممالک منتقل کرتے ہوئے سائبر جرائم گروہ کے ہاتھوں ارغمال بنائے جانے کی انتہائی سنگین مسئلے پر MP D اروین نے پارلیمنٹ میں آرٹیکل 377 ایکٹ کے تحت آواز اٹھائی۔ ریاست مشیر محمد علی شبیر کا مرکز سے امید پورٹل کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ۔ BC تحفظات کے لیے کانگریس پارٹی پابند عہد ہے۔ نظام آباد رورل MLA کیمپ دفتر میں منعقدہ میڈیا اجلاس سے رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی کا اظہار۔ اپل فلائی اوور تعمیری کاموں کو مرکزی ریاستی حکومت کے اشتراک سے فوری طور پر مکمل کرے۔ اپل فلائی اوور تعمیری کاموں کا تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے جائزہ لیتے ہوئے کیا خطاب۔ انتخابی فرائض کو چوکسی کے ساتھ انجام دے۔ ایڈپلی منڈل پریشد دفتر کا کلکٹر TV نے کرشنا ریڈی نے اچانک تنخی عمل میں لائی۔ ادارے بیت المال میں امید پورٹل کی خدمات جاری، عوام ادارے کی خدمات سے حاصل کرے استفادہ۔ ریاستی مشیر محمد علی شبیر کا مرکز سے امید پورٹل کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے SC ST اور BC و اقلیتی امور محمد علی شبیر نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ کے وقف جائیدادوں کی تفصیلات امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی جائے۔ موجودہ ڈیڈ لائن 5 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کم از کم 6 ماہ جبکہ بہتر طور پر 1 سال کی مہلت دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں ادارے تکنیکی رکاوٹوں اور زمینی سطح پر معلومات کی کمی کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ کامریڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے شبیر علی نے بتایا کہ کئی مساجد کے منتظمین اور متولیوں کو پورٹل کے شرائط سے متعلق بروقت اطلاع نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آخری دنوں میں الجھن اور اضطراب بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد دیہات اور قصبوں تک متعلق پیغامات پہنچ ہی نہیں سکے، جس کے باعث مساجد، مدارس اور دیگر وقف ادارے تذبذب کا شکار ہیں۔ شبیر علی کے مطابق وقف بورڈ، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور میونسپل انتظامیہ کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے مقامی کمیٹیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کامریڈی میں انہوں نے 3 کمپیوٹرز فراہم کیے اور حیدرآباد و نظام آباد کے وقف انسپکٹرز کی ٹیم بھی بلوا کر ڈیٹا انٹری میں تعاون حاصل کیا۔ پورٹل بار بار ڈاؤن ہو رہا تھا۔ جیسے ہی سروے بحال ہوتا ٹیم کام شروع کر دیتی تھی، مگر تمام اداروں کی انٹری مکمل کرنے کے لیے وقت ناکافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعدد مساجد اور مدارس کو خوف ہے کہ اگر ڈیڈ لائن میں توسیع نہ ہوئی تو ان کی جائیدادیں پورٹل کی فہرست میں شامل نہیں ہو پائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ متولیوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ اگر بروقت انٹری نہ ہو سکی تو کیا ان کی مسجد رجسٹرڈ
ही रहेगी। इस खदशे के खात्मे के लिए कम अज़ कम 6 माह तर्जीहन 1 साल की मोहलत नागुज़र है। शब्बीर अली ने बताया कि वो इस मसले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट के जरिए बारहा मरकज़ तक पहुँच चुके हैं। शब्बीर अली ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत वक्फ इराज़ी के शिफाफ और दुरुस्त रिकॉर्ड की मुकम्मल हिमायत करती है, ताहम ये अमल इजाफी वक्त के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने जोर दिया कि मरकज़ी फौरी तौर पर डेडलाइन में तोसी का ऐलान करे ताकि मुतवल्लियों की बेचैनी ख़त्म हो, गलतियों से बचाव मुमकिन हो और रियासत की हर वक्त जायदाद उम्मीद पोर्टल पर दुरुस्त तरीके से महफूज हो सके। तेलंगाना जागृति सदर के कविता का मेडचल मलका जिगरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम की तकालीफ का लिया जायजा। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत आज मेडचल मलका जिगरी ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कविता ने अवामी मसाइल का बराह रास्त जायज़ा लिया। कविता ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और मुतअद्दिद सरकारी महकमों की लापरवाही पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया। कविता ने वाज़ेह किया कि अवामी तकालीफ और बुनियादी सहूलतों की कमी किसी भी हुकूमत के लिए लम्हे फ़िक्र है और इस ज़िमन में फौरी कार्रवाई नागुज़र है। कविता ने रामंतापुर पहुंचकर कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर रथ यात्रा के दौरान बरक़ी शाख से फौत 5 अफराद के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि हादसा की असल वजह बिजली की झुकी हुई तारें और बिजली महकमे की संगीन गफलत है। तमाम मुतवफ़्फ़ी नौजवान अपने घरों के वाहिद कफील थे, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर एक्स ग्रेशिया जारी करे और कम अज़ कम 10 लाख रुपये मुआवजा दे। मुतासरा ख़ानदान के एक फ़र्द को बिजली महकमे में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर मुलाजिमत फराहम की जाए। वाक़े को 4 माह गुजर चुके हैं मगर हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जागृति अपने जानिब से भी हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बादशाह कविता ने फलाही ओवर के तामीरी कामों का जायज़ा लिया जो गुज़िश्ता 14 बरसों से ताख़ीर का शिकार है। अगर म्युनिसिपल कमीशन या मुतालिक हुक्काम ने मसला हल न किया तो हम कॉलोनी के अवाम के साथ अवामी अदालत प्रजवानी में जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अदालत से भी रुजू होंगे। मूसा नदी की सफाई बेहद ज़रूरी है, लेकिन यह काम अवाम की रजामंदी के साथ होना चाहिए। कविता ने कहा कि जन्म बांटा के दौरान उपल हल्के में जिन मसाइल का इंकशाफ हुआ है वह हुकूमत की गफलत और गैर संजीदगी को जाहिर करते हैं। तेलंगाना जागृति इन तमाम मसाइल पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी, क्योंकि अगर सवाल करने वाले ना हो तो हुकूमतें कभी नहीं सुनती। రామంతపూర్లో అయ్యప్ప గుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి యాదవ సంఘంలో మరి కృష్ణాష్టమి వేడుకల సందర్భంలో 5 మంది యువకులు కరెంటు తీగలు కిందికి వేలాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి అనుకోకుండా అవి తగిలి షాక్ కొట్టి చనిపోవడం జరిగింది. మరి ఆ కరెంటు తీగలు కిందికి వేలాడడం అన్నది వాళ్ళ తప్పు కాదు, అది 100కు 100% ప్రభుత్వం యొక్క తప్పు. ప్రభుత్వం కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి తీగలను వారు సరి చేసుకోకపోవడంతో జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ అది. కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి చనిపోయినటువంటి వారికి ఏదైతే ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించినారో దాన్ని తక్షణమే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా అందరూ కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు యువకులు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఒక పక్క తల్లి, ఇంకొక పక్క భార్య, అందరినీ కూడా పోషించేటటువంటి వారే చనిపోయారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం పెద్ద మనసు చేసుకొని 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వారి కుటుంబంలో మరి తప్పకుండా ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక డిమాండ్ కుటుంబ సభ్యులు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దాని మీద ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ తక్షణం ఆలోచన చేయాలి. మీరు వందలాది మందిని అవుట్సోర్సింగ్లో తీసుకుంటారు. ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇంటి నుండి కూడా ఒక్కొక్కరిని మీరు అవుట్సోర్సింగ్ తీసుకుంటారా, కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారా, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంటు ఇమీడియట్గా ముందుకొచ్చి తీసుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన కలెక్టర్ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. చనిపోయినటువంటి వారందరూ కూడా పశుపోషణ మీద ఆధారపడినటువంటి యాదవ్ కుటుంబాల వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా కొంతమంది వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ మరి అందరినీ కూడా మంచి హృదయంతో ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మా సంస్థ తరఫున కూడా ఎంత వీలైతే అంత ఈ కుటుంబాలకు మేము కూడా మద్దతు ఇస్తాం. కానీ ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాలి, ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేది ప్రధాన డిమాండ్గా మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మా మేడ్చల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామిడి వెంకటరెడ్డి గారు 4 నెలల క్రితం మరి కుటుంబాలను పరామర్శించి
మరి మళ్ళీ వస్తాం, తప్పకుండా ఈ సమస్య తీరుస్తామని చెప్పారు. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ 4 నెలల్లో కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకొని ఈ సమస్యను తీర్చలేదు. కాబట్టి తక్షణమే దీని మీద చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. सोने की कीमत में मामूली कमी। शहर की मार्केट में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली कमी देखी गई। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 220 रुपये कम होकर रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,30,360 भी कम होकर 1,19,500 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी कमी आई। 1 किलो चांदी की कीमत रुपये घटकर 2 लाख रुपये पर बरकरार है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 1000 अहम शहरों में भी तकरीबन यही कीमतें बरकरार रहने का इम्कान है। ट्रैफिक चालानात पर 100% डिस्काउंट पर पुलिस का बयान। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक चालानात पर 100% तक डिस्काउंट दिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मालूमात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। अफवाहों में 13 दिसंबर को चालाना रियायत देने का दावा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। अवाम से अपील की गई कि गैर मुस्तनद और गैर मुस्तक़ा मामूलात पर यकीन ना करे। इदारे बैतुल माल में उम्मीद पोर्टल की खिदमत जारी। अवाम इदारे की खिदमत से हासिल करे इस्तिफादा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अपने शहर निज़ामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया था। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के तहत जो जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया था, उसके बाद से हमारी काफ़ी कोशिशें रही और जिस किस्म का भी एहतजाज दर्ज कराना था जॉइंट एक्शन कमेटी ने तमाम एहतजाजों को दर्ज कराया और अपने तौर से शहर के तमाम लोग इसमें शामिल रहे, तमाम मकादी फ़िक्र के लोग शामिल रहे इसके अंदर। और जब हमारे कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम साहब इस कारवान को अच्छी तरीके से लेके चलते रहे, आज इस वक्त वो किसी काम की वजह से हैदराबाद में मौजूद है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं है। हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह काम किया है, जिसमें हमारे कन्वीनर साहब बुधन में, कामारडी में, बांसवाड़े में, आरमूर में, नंदीपेट में, नवीपेट में, पिटलम में, भीमगल में, हर जगह दौरा करते रहे, लोगों में शऊर बेदारी का काम करते रहे। और आज उसके बाद ये काम चल रहा है यहाँ पर बैतुल माल में। तो ये इस सिलसिले में मजीद तमाम अहबाब से गुजारिश है कि बचे हुए वक्त में, जो कि 5 तारीख है, आप लोग इससे इस्तिफादा हासिल करें, बैतुल माल में आए और अपने अपने मसाजिद को वह उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करवाएं। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने उप्पल फ्लाई ओवर तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कामों की ताखीर की वजूहात के बारे में दरियाफ्त किया। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने उप्पल फ्लाई ओवर तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कामों की ताखीर के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि उप्पल फ्लाई ओवर को तकरीबन 8 सालों से ज़ेर तामीर है। हुकूमत बदलने के बावजूद भी उप्पल अवाम की सूरत हाल में कोई तब्दील न आने पर तनकीद की। इस मौजू पर वो कानून साज कौंसिल में आवाज़ उठाने से रियासती वजीर कोमट रेड्डी की जानिब से रद्द अमल जाहिर किया है। अनकरीब इजलास मुनक़िद करके मुकम्मल करने के ताल्लुक़ से तयक़ुन देने का इन्होंने इजहार किया। इसके बाद कंट्रैक्टर को तब्दील किया है या नहीं वक्फियत नहीं है, लेकिन सारा काम रुक चुका है। जागृति जनमबाटा के तहत इस मसले को हल के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने के लिए आने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि घट के सर तक आवाम को ट्रैफिक से रुकावट न होने के लिए इस फलाही ओवर की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस फलाही ओवर की तामीर 8 साल से जारी रहने के बाइस हुकूमत आवाम के तय खुसूसी दिलचस्पी न लेने का इजहार किया। మారడం లేదన్న విషయాన్ని మనందరం కూడా గమనించవచ్చు। మరి ఇక్కడ ఉప్పల్లో ఉండేటటువంటి ఫ్లైఓవర్ పూర్తి చేయడానికి కోసము పోయిన సంవత్సరం నేను లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఒక ఎమ్మెల్సీగా ఈ విషయాన్ని రేజ్ చేయడం జరిగింది। అప్పుడు కూడా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు తొందరలో పూర్తి చేస్తాం మేము బీజేపీ కిషన్ రెడ్డి గారు మరి దగ్గరుండి కేంద్ర మంత్రి కాబట్టి దాన్ని పరిష్కారం చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। మరి ప్రాంత ఎంపీ అయినటువంటి ఈటెల రాజేంద్ర అన్న ఇక్కడికి రావాలి, మేము ఎట్లయితే వచ్చినామో ఇట్లా ఒకసారి మీరు వచ్చి చూస్తే
ఈ కాంట్రాక్టర్లకు భయం हिल्ट पॉलिसी पर बीआरएस की जानिब से की गई तनकीद पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रद्द अमल जाहिर किया। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दिल्ली मुकम्मल तौर पर आलूदगी से भरी हुई है। हैदराबाद को इस तरह सूरत हाल न आने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने हेल्थ पॉलिसी को मुतारफ किया है, जो कि एक बेहतरीन पॉलिसी होने का इन्होंने इज़हार किया। इस पॉलिसी की वजह से आवाम को दस्तयाब में ज़मीनात की कीमत रहेगी और सनअत हैदराबाद के किनारों पर होने से आलूदगी में इजाफा हुआ है। इसलिए ORR को बाहर मुंतकिल करके इस जगह प्रेसिडेंशियल एरिया बनाने का फैसला किया है और ये काम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से किए जाने के बारे में बताया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन पिछले 10 सालों में हैदराबाद को लौटने के दौरान बीजेपी कायदीन की जानिब से मुदाखलत क्यों नहीं की गई। सीएम की जानिब से किए गए मुहावरे पे हंगामा बर्पा किया है। इन्होंने कहा कि डीसीसी के इंतखाबात के मुकाबले में कोई भी अवाम इत्मीनान ना होने का इजहार किया। तेलंगाना के जज्बात से बीआरएस पार्टी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए मुहावरे पर सियासत करना मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि कौनी जेटी रौशैया एसपी बाला सुब्रमण्यम एक के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। इन्होंने कहा कि बाला सुब्रमण्यम का मुजस्समा रविंदर भारती में क़याम अमल में लाए तो इसमें गलत क्या है। भारतीय राष्ट्र समिति के लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी खिदमत अंजाम देने का इन्होंने इजहार किया। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हेल्थ पॉलिसी के तहत हैदराबाद में आम आदमी के लिए ज़मीनात की कीमत में दस्तयाब में आएगी और आलूदगी से पाक शहर हैदराबाद बन जाने का इजहार किया। इंडिगो एयरलाइंस की 200 से ज़ायद परवाजें हुई मनसूख। दिल्ली से मुंबई तक इंडिगो की परवाजें 3 दिसंबर को बुरी तरह मुतासिर रहीं। चाशंबे को शहरी हवाबाजी कंपनी इंडिगो को अपनी तकरीबन 200 परवाजें मनसूख करनी पड़ी। इस मनसूख की असल वजह टेक्निकी खामियां बताई जा रही है। कुछ एयरपोर्ट पर अमले के एहलकारों की कमी से मुतालिक बात भी सामने आई है, जिसके सबब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे रियासतों में मुसाफिर घंटों परेशान रहे। चेक और बोर्डिंग प्रोसेस में दिक्कत पेश आने के बाद तमाम एयरलाइंस में मैनुअल चेक इन ओवर बोर्डिंग प्रोसेस का निफाज कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से ही चेक इन में मुश्किलात आने लगी थी, जिसकी वजह से 4 एयरलाइंस कंपनियों इंडिगो, स्पाइसजेट, अकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजें मुतासिर हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुबह 7:40 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि हमारी ऑन ग्राउंड टीमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने दुनिया भर में बड़ी सर्विस आउटेज की रिपोर्ट दी है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर मौजूद आईटी सर्विस पर असर पड़ा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी तरदीद में कहा कि विंडोज़ पर कोई टेक्निकल मसला नहीं है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ सिस्टम एयरपोर्ट और फ्लाइट सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद देखने को मिली है। यहाँ भी चेक इन सिस्टम में खराबी और ताख़ीर की वजह से मुसाफिरों की परवाजें छूट गई हैं। इस मसले के मुतालिक इंडिगो के एक तर्जुमाना ने जानकारी देते हुए कहा कि तकनीकी मसला, एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त हुजूम और ऑपरेशनल ज़रूरतें जैसी कई वजूहात के सबब हमारे परवाज़ में ताख़ीर हुई और कुछ मनसूख भी हुई है। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल तेज रफ्तार के साथ जारी है। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में दूसरे दिन भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए उम्मीदवार की कसीर तादाद आने के बाइस हलचल नजर आई। इंतखाबात के मद्देनजर उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल किए गए नॉमिनेशन को रिटर्निंग ओहदेदार
पीसी निवास ने कबूल किया। इस मौके पर सरपंच उम्मीदवारों के साथ वार्ड मेंबरान की जानिब से नॉमिनेशन दाखिल किए गए। एड़पल्ली मंडल में पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम तेजी के साथ जारी है। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के तहत देहातों में उम्मीदवार मंडल से मुतालिक देहातों में पैदल दौरा करते हुए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। बरोज़े जुमेरात सापहर उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात मुख्तस किए जाने के बाइस इंतखाबी मुहिम की तशहीर तेज रफ्तार के साथ जारी रही। इस हिस्से के तहत मेजर ग्राम पंचायत होने वाले जंकापेट देहात में श्रीमती अनुपा ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इंतखाबी मुहिम का इनकाद अमल में लाया गया। इसमें खवातीन की कसी तादाद ने शिरकत की। एड़पल्ली मंडल के ARP कैंप देहात में उम्मीदवारों ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े ARP कैंप दफ्तर में उम्मीदवारों ने घर घर इंतखाबी मुहिम का इनकाद अमल में लाया गया। इस तशहीरी मुहिम अवाम की कसी तादाद कांग्रेस की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार परमल्ला विनोद की हिमायत से घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हर एक राय दहिंदे से मुलाकात करते हुए वोट देने की ख्वाहिश की। पहले मरहले के इंतखाबी मुहिम के तहत विनोद ने अंचा शहर के साथ साथ मंडल से मुतालिक देहातों में इंतखाबी मुहिम का इनकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत हुकूमती मुशीर पोदन MLA सुदर्शन रेड्डी व मंडल पार्टी सदर PC निवास के ज़ेर एहतमाम देहात को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటింటికి కరెంటు ఉచిత ఫ్రీ కరెంట్ వస్తుంది। సన్న బియ్యం రేషన్ కార్డు ఇస్తారు రేవంత్ రెడ్డి సార్ గారు। ఇలా అనేకమైన పనులు చేసినాం। అంతేకాకుండా గ్రామంలో మోరం రోడ్లు వేయించినాము, సీసీ రోడ్లు వేయించినాము, సీసీ డ్రైన్స్ వేయించినాము, సీసీ రోడ్లు వేయించినాము, 2-3 చోట్ల పెద్ద పెద్ద కల్వర్ట్లు వేయించినాము। ఇదంతా उप्पल हल्के के रामंतापुर इंदिरा नगर में वाक़े चाकली आइलम्मा के मुजस्समे पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने पेश की खिराज अकीदत। उप्पल हल्के में वाक़े रामंतापुर इंदिरा नगर में मौजूद चाकली आइलम्मा के मुजस्समे पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने खिराज अकीदत पेश। बाद अज़ां के कविता ने इंदिरा नगर तालाब का जायजा लेने के दौरान मुकामी अवाम ने तालाब में कचरे में इजाफा होने से फैलने वाले ताउफून से होने वाली मुश्किलात के बारे में के कविता को आगाही फराहम की। आरमूर शहर में नमस्ते आरमूर प्रोग्राम के तहत जिला BRS सदर व साबिका MLA जीवन रेड्डी ने अक़लियतों को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से की आगाही हासिल। आरमूर शहर के ज़िराअत नगर में जिला BRS सदर व आरमूर के साबिका MLA जीवन रेड्डी ने नमस्ते आरमूर प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने अक़लियतियों के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए इनके हालात दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल की। इस दौरान मुख्तलिफ अक़लियती भाइयों ने साबिका हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए फंक्शन हॉल की तामीरी काम को रोकने के ताल्लुक से जीवन रेड्डी के इल्म में लाने के फौरी बाद इन्होंने बुजुर्गों के हमरा फंक्शन हॉल की तामीरी कामों का जायजा लेने के बाद खिताब के दौरान कहा कि हमारी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में मेरी जानिब से संगे बुनियाद रखे जाने वाले कामों पर खुसूसी तवज्जो न देने का इन्होंने इज़हार किया और बताया कि कमीशन के लिए कंट्रैक्टर को धमकी तक दी गई है और इनकी जानिब से तलब किए गए रकूमात की अदायगी अमल में न लाने की बिना पर तामीरी कामों को रोकने का आरमूर हल्का कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की जानिब से हुक्म जारी करने का इल्ज़ाम आयद किया। एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाई। एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर इस मंडल में इस माह की 11 तारीख को पोलिंग का अमल मुनक़िद होने के बिना पर नॉमिनेशन की वसूली से शुरू होकर अब तक मुकम्मल किए गए अमल व क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अंजाम देने के बारे में और पोलिंग के इनक़ाद के लिए शुरू किए जाने वाले इक़दामात की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से कलेक्टर ने MPDO तहसीलदार दीगर ओहदेदारों के साथ मुनक़िद इजलास में किसी भी किस्म की गलती व कोताही के बगैर इंतखाबात को शिफाफ तरीक़े से इनक़ाद करे और वोटिंग के लिए ज़रूरी होने वाली इंतखाबी सामान को तैयार रखें और इसके अलावा बैलेट पेपर मटेरियल इंतखाबी अमला और जोनल ओहदेदारों का
तकर्रुर और दीगर इंतजामात के बारे में आगाही हासिल की। नौजवानों को फर्जी मुलाजिमत के नाम से बैरून मुमालिक मुंतकिल करते हुए साइबर जराइम गिरोह के हाथों इरगमाल बनाए जाने के इंतहाई संगीन मसले पर MPD अरविंद ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 377 एक्ट के तहत आवाज़ उठाई। MPD अरविंद ने कहा कि रियासत तेलंगाना से ख़ास तौर पर नौजवानों को थाईलैंड में मुलाजिमत फराहम करने के ताल्लुक से एतमाद में लेने वाले एजेंट लाखों रुपये वसूल कर रहे हैं और वहां पर पहुंचने के फौरी बाद इनका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है और म्यांमार में मौजूद बगावत से मुतासिर इलाकों में वाक़ साइबर जराइम कैंप फ़रोख्त करने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुतासिरीन को शदीद तशद्दुद और ग़ज़ा की फराहमी अमल में ना लाकर तारीकी कमरों में क़ैद करने के ताल्लुक से अहल खाना की जानिब से बताए जाने का इजहार किया और इस जराइम के लिए मुकामी मलेशिया फ़ौज में कुछ अफराद की जानिब से रिश्वत लेते हुए ताउन करने के बाइस हिफाजती इक़दामात में मज़ीद मुश्किलात का सामना होने पर MPD अरविंद ने अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नौजवान भी इस गिरोह का शिकार होकर फ़िलहाल वहां पर फंस जाने का इजहार किया। MPD अरविंद ने कहा कि इस सूरत हाल का हंगामी तौर पर जायज़ा लेते हुए वहां पर फंस जाने वाले हिंदुस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ करके फिर दोबारा वतन वापस लाने के लिए इक़दामात करें। ख़ास तौर पर पसमानदा ज़िलों में गैर मुल्की मुलाजिमतों के धोखाधड़ी के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद करें और इस जराइम के लिए ताउन करने वाले हिंदुस्तानी एजेंट और भर्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद होने का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि BC तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पर पाबंद अहद होने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समरात से हर एक तबके के अफराद को मुस्तफ़ीद करवाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारों को मुतहरिक करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिल्ट पॉलिसी पर BRS की जानिब से की गई तनकीद पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने रद्द अमल जाहिर किया। हैदराबाद को इस तरह की सूरत हाल का सामना न करने के लिए रेवंत रेड्डी ने इस पॉलिसी को मुतारफ़ किया है। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ का इजहार। नौजवान को फर्जी मुलाजिमत के नाम से बैरून मुमालिक मुंतकिल करते हुए साइबर जराइम गिरोह के हाथों इरगमाल बनाए जाने की इंतहाई संगीन मसले पर MPD अरविंद ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 377 एक्ट के तहत आवाज़ उठाई। रियासत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मरकज से उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन में तोसी का मुतालबा। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद है। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। उप्पल फलाई ओवर तामीरी कामों को मरकजी रियासती हुकूमत के इश्तराक से फौरी तौर पर मुकम्मल करें। उप्पल फलाई ओवर तामीरी कामों का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने जायजा लेते हुए किया खिताब। इंतखाबी फराइज को चौकसी के साथ अंजाम दे। एडपल्ली मंडल परिषद दफ्तर का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाई। इदारे बैतुल माल में उम्मीद पोर्टल की खिदमत जारी। अवाम इदारे की खिदमत से हासिल करे इस्तेफादा। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।